Let us start then. Okay. So, good morning, students. Today we will learn 3 topics. All these topics are useful. It is important as your short notes. Okay. And one topic is very important for your numerical purpose. Okay. And the first topic is what? Negative super elevation. Okay. So the first topic, this comes under your, this is the continuation of your geometric design. Okay. So this comes under your geometric design and the topic is the negative super elevation. Now, what do you mean by the negative super elevation? Say for example, this is the straight line. Okay. This is the straight curve. Now, say for example, this is the, yes, straight curve. Okay. Now see, there is one change in the direction, or we can say this is what, this is your another curve line and this is another curve line. Okay, suppose this is your main curve line and this is your branch curve line. Okay, or this is a branch line. So whenever there is a change in the direction, what we have to do, we have to provide curve, we already know. Okay, and whenever there is a curve, there will be some centrifugal force, okay, acting outward. Say for example, for this curve, centrifugal force will be acting outward in this direction. Okay, and for this curve it will be acting in this opposite direction. Okay, so in order to tackle this centrifugal force, our, for this line, particularly for main branch line, okay, this is the outer curve, yeah, outer track. This is your outer track. Okay, so your outer track must be at the higher elevation compared to the inner track. Okay, similarly for this curved part, this is the outer track, so this track must be at the higher level than this inner track for this particular track, right? This is suppose this is the branch line, this is the main line. अब देखो ये मेन लाइन का ये वाला ऊपर होना चाहिए और मेन लाइन का इसका एलिवेशन ऊपर होना चाहिए. ओके, सो then what do you mean by negative super elevation? Suppose this is the main line. The main line के लिए at this particular section, ये वाला section में देखो A और B, which is the outer track? A है या B है for main line? Outer track कौन सा होगा? बोलो. मेन लाइन के लिए आउटर ट्रैक कौन सा होगा? ए होगा कि बी होगा? ए होगा तो मैम. यस, ए होगा, राइट. सो दिस एलिवेशन मस्ट बी एट द हायर लेवल कंपेयर टू दिस बी. मतलब ये वाला थोड़ा ऊपर होगा, इसका एलिवेशन थोड़ा ऊंचा होगा, ये वाला थोड़ा नीचे की तरफ होगा, राइट. बट इन केस ऑफ ब्रांच लाइन क्या होना चाहिए था? इन केस ऑफ ब्रांच लाइन बी शुड बी हायर देन ए, राइट. लेकिन हम लोग के लिए मेन जो पहले मेन था उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं, राइट. सो इन दैट केस क्या हो रहा है? देखो, फॉर मेन लाइन योर ए पॉइंट इज एट हायर लेवल देन द बी पॉइंट. ठीक है. सो ये क्या है? इसके लिए पॉजिटिव सुपर एलिवेशन हम लोग बोल सकते हैं फॉर द मेन लाइन. बट इन केस ऑफ ब्रांच लाइन क्या हो रहा है? उल्टा हो जा रहा है, राइट. बी लाइन क्या हो जा रहा है? मेन लाइन के लिए, ये जो मेन ब्रांच लाइन के लिए बी क्या हो जा रहा है? नीचे हो जा रहा है, राइट. With respect to the A, मतलब this is क्या है? Actually B should be at the higher level than the A for branch line, but वैसा नहीं हो रहा है. लेकिन क्या हो रहा है? उल्टा हो जा रहा है कि B is at the lower level than the A. That's why for this case, for branch line, this case is the negative super elevation. Why? Because अगर हम branch line consider करेंगे तो ये B is at lower level than the A. That's why it is called negative super elevation, right? तो इसको बोलते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन. ये क्लियर है? एंड दिस ऑकर्स कहाँ पे होता है? व्हेनेवर देयर दिस, ये जो फ्लेक्चर है इसको बोलते हैं चेंज इन डायरेक्शन जो हो रहा है, इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन में जब होता है, ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ,
तभी तुम्हारा ये नेगेटिव सुपर एलिवेशन आ सकता है। ओके, आता है। जैसे कि ये वाला देखो, एक जा रहा है इस तरफ, एक जा रहा है इस तरफ। तो सपोज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, इसके लिए ये तुम्हारा दिस शुड बी एट द हायर लेवल कंपेयर टू द मेन लाइन के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये वाला थोड़ा ऊपर रखेंगे हम लोग ये वाले ट्रैक से, इसका एलिवेशन मस्ट बी अबव देन दिस एलिवेशन, राइट। तो क्या हो जा रहा है, देखो उल्टा हो जा रहा है। फॉर ब्रांच लाइन ये उल्टा सुपर एलिवेशन हो जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। मेन लाइन के लिए तो ठीक है सुपर एलिवेशन, बट इन केस ऑफ ब्रांच लाइन इट इज नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। ये तो ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे हो रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वन प्रॉब्लम, टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में कौन, एक है कि मेन लाइन में तुमको क्या देगा, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड दे देगा, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ कर्व कितना है वो दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा कि फाइंड आउट व्हाट शुड बी द रेस्ट्रिक्टेड स्पीड इन दिस ब्रांच लाइन। दो केस होगा, तुम्हारा मेन के लिए सब कुछ दे देगा, ओके, डिग्री कितना होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड कितना होना चाहिए, सब कुछ दे देगा मेन लाइन के लिए, ठीक है। बोलेगा यूजिंग दिस डाटा कैलकुलेट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, मतलब कर्व में हम लोग को स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना पड़ता है, राइट। तो व्हाट इज द रेस्ट्रिक्टेड स्पीड इन द ब्रांच लाइन इफ डिग्री ऑफ कर्व इज गिवन फॉर द ब्रांच लाइन, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि ब्रांच लाइन का डिग्री ऑफ कर्व दिया है, तुम्हारा ब्रांच लाइन का रेस्ट्रिक्टेड स्पीड दिया है, ओके। नाउ यूजिंग दिस डाटा एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैट वन, जो भी है E इक्वल्स टू जीवी स्क्वायर बाय 127R जो फॉर्मूला है, उसको इक्विलिब्रियम कांट का फॉर्मूला यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट द ब्रांच लाइन का तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड स्पीड दिया है, अब बोलेगा मेन लाइन का रेस्ट्रिक्टेड स्पीड निकालो, ओके। सो दिस मे बी द टू केसेस। तो हमेशा याद रखना कि मेन लाइन का इस वाले सेक्शन में, ए बी सेक्शन में जो भी सुपर एलिवेशन आएगा मेन लाइन के लिए, ओके, वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दैट शुड बी कन्वर्टेड टू नेगेटिव फॉर ब्रांच लाइन, मतलब मेन लाइन का जो भी सुपर एलिवेशन आएगा इस वाले सेक्शन में वो ब्रांच लाइन के लिए नेगेटिव हो जाएगा। सपोज यहाँ पे तुम्हारा 1.8 सेंटीमीटर आ रहा है सुपर एलिवेशन, मतलब 1.8 should be higher, a point should be 1.8 सेंटीमीटर हायर देन दी b। इसका मतलब ये है मेन लाइन का अगर सुपर एलिवेशन ऐसा आ रहा है, then what is the negative super elevation of this branch line? Obviously -1.8, क्योंकि ये वाला क्या है, b तुम्हारा कितना नीचे है, -1.8, उसका एलिवेशन का डिफरेंस क्या है, b minus a is giving -1.8, ओके। सो whenever we are converting from main line to branch line, तो ब्रांच लाइन के लिए हम लोग को नेगेटिव पकड़ लेना है, ओके। सो अब कर चलते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं, पहले क्या करना है, मेन लाइन का तुमको रेस्ट्रिक्टेड स्पीड या ब्रांच लाइन का रेस्ट्रिक्टेड स्पीड जो भी देगा, यूजिंग दैट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांट इज व्हाट, इट इज द थ्योरेटिकल कांट, ठीक है। तो थ्योरेटिकल कांट से हम लोग कांट एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट माइनस करके क्या करेंगे, एक्चुअली जो प्रोवाइड कर रहे हैं फील्ड में, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, एक्चुअल कांट निकालना है, ठीक है। नाउ दैट एक्चुअल कांट विल बी एक्चुअल कांट फॉर ब्रांच लाइन, अगर मेन लाइन का निकाल रहा है तो ब्रांच लाइन का एक्चुअल कांट हो जाएगा वो, ठीक है। फिर उसमें तुम्हारा कांट डेफिशिएंसी ऐड माइनस करके थ्योरेटिकल निकाल के रेस्ट्रिक्टेड स्पीड निकालना है, ओके। सो लेट अस डू वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो, अ 5 डिग्री कर्व, ओके, अ 5 डिग्री, सपोज ये वाला ही है, देखो ये वाला स्टेप्स दिया गया है, ओके। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर द ब्रांच लाइन, मतलब ब्रांच लाइन का रेस्ट्रिक्टेड स्पीड दिया है तो उससे फर्स्ट कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, राइट। दिस इज द थ्योरेटिकल एंड वी नो एक्चुअल शुड बी ऑलवेज लेसर देन द थ्योरेटिकल, ठीक है। इसलिए देखो एक्चुअल कांट अगर x है, ठीक है, ब्रांच लाइन का अगर एक्चुअल कांट x है, देन व्हाट इज इट्स वैल्यू, इट शुड बी इक्विलिब्रियम माइनस कांट डेफिशिएंसी, ओके। कांट डेफिशिएंसी एक्चुअली होता क्या है, देखो हम दिखा देते हैं। कांट डेफिशिएंसी ये
अच्छा, ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑडियो आ रहा है ना? हेलो, ऑडियो आ रहा है, सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो Due to the coned ये वाला profile देखो, कान डेफिशिएंसी, ओके। 20 inclination of the rail, the wheel flanges should not touch the on straight track. Due to the coned profile of the wheels and the 1 in 20 inclination of the rail, the wheel flanges should not touch the gauge face. On curved track, the same effect is theoretically possible to achieve by the application of sufficient cant. This amount of cant is called the equilibrium cant and is calculated by using line speed and curve radius. Because of the use of different vehicles of various sizes and various speeds around the same curves, this is undesirable in reality. For CWR, the maximum allowed cant is 150 millimeters, and the maximum deficiency allowed is 110 millimeters. Generally, 2/3 of the equilibrium cant value is used as applied cant, with the remaining third left as cant deficiency. For example, the calculated equilibrium cant for a curve is 180 millimeters. 2/3 of 180 is 120 millimeters. So this amount of cant is applied, leaving 60 millimeters of cant deficiency. However, if the predominant speed of traffic around the curve is slow, too much cant loads the low rail. In this instance, it is appropriate to reduce the amount of cant to 90 millimeters, leaving 90 millimeters deficiency. Alternately, if all of the traffic is high speed, it is appropriate to increase the cant to reduce the side wear on the high rail. In this instance, 150 millimeters of cant could be applied, leaving 30 millimeters deficiency. The trace is a plot of the calculated cant deficiency using measured values of cant and curvature, and is coupled with line speed from the route. देखो क्या कहा था कि से दिस इज व्हाट, ये है तुम्हारा, ये जो रेड है, दिस इज व्हाट, ये टोटल जो है, ये टोटल इज द सुपर एलिवेशन कांट, ओके। दिस इज एक्चुअली द थ्योरेटिकल कांट, ओके। ये पूरा है तुम्हारा थ्योरेटिकली, मतलब थ्योरेटिकली मतलब है अगर तुम्हारा ट्रेन का जो स्पीड है मैक्सिमम अगर जाएगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड जो भी है मैक्सिमम स्पीड से अगर जाएगा तो इतना सुपर एलिवेशन हमको देना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो हर सब टाइप का व्हीकल तो नहीं जाता है, कभी कभी तुम्हारा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ये सब भी जाता है, कभी कभी लोकल ट्रेन भी जाता है, राइट। सो व्हाट जैसे जैसे हम लोग बोले थे विद इंक्रीज इन द स्पीड दिस सुपर एलिवेशन शुड बी इंक्रीज्ड, लेकिन इन प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू लेकर करते हैं, मैक्सिमम भी नहीं देते हैं, लोएस्ट भी नहीं देते, ऑन एवरेज करते हैं। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम का एलिवेशन थोड़ा ज्यादा होगा और एवरेज का थोड़ा कम रहेगा, राइट। तो एवरेज का कम होने की वजह से क्या कर रहे हैं, हम लोगों को डेफिशिएंट कर देना, हम लोग को सबट्रैक्ट कर देना है कांट को, राइट। कांट इज नथिंग बट द सुपर एलिवेशन। सो दिस, ये जो होल है दिस इज द थ्योरेटिकल, ये जो रेड किया है हम लोगों ने, मतलब ये माइनस कर दिया है हम लोगों ने कि इसको और रिड्यूस करके इतना, ये जो येलो है उतना ही हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये वाला देखो, दिस इज ये टोटल सुपर एलिवेशन जो है, ये टोटल 180 इज द इक्विलिब्रियम कांट, दैट इज फॉर द मैक्सिमम स्पीड के लिए जो हम लोग निकाल रहे हैं, ओके, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग क्या माइनस कर दे रहे हैं, कांट डेफिशिएंसी। सपोज 60 mm हम लोगों ने कांट डेफिशिएंसी सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टाइम तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड से ही जाएगा हर वक्त, राइट। अगर ज्यादा कांट भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ज्यादा कांट देने से भी अगर स्लो स्पीड से कोई व्हीकल जा रहा है तो वो टिल्ट होने का चांस हो जाता है, राइट। सो हम लोग को ज्यादा भी नहीं देना है, ठीक है। तो वी शुड रिड्यूस दैट कांट। प्रैक्टिकली जो दे रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्चुअली थ्योरेटिकली 180 देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने कांट डेफिशिएंसी मतलब रिड्यूस करके, कितना रिड्यूस किया, 60 mm रिड्यूस करके वी आर प्रोवाइडिंग दिस मच mm ऑफ कांट डेफिशिएंसी, दिस मच amount ऑफ कांट, ओके। एंड दिस इज द अप्लाइड कांट और द प्रैक्टिकल कांट, ये याद रखना, ओके। सो इक्विलिब्रियम कांट इज इक्वल्स टू क्या है, एक्चुअली जो प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस कांट डेफिशिएंसी, ये फॉर्मूला याद रखना, ओके। सो अप्लाइड प्लस deficiency, कांट deficiency is giving us the equilibrium कांट। I think this is clear.
ओके। So let us go to the presentation. तो ये जो है तुम्हारा यही है। ओके, तो ये जो फंडा है यही पूरा दिया गया है। ओके, नाउ हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन प्रोवाइडेड टू यू। अ 5 डिग्री कर्व डाइवर्जेस फ्रॉम अ 3 डिग्री मेन कर्व। मतलब मेन कर्व का तुम्हारा कितना डिग्री है, इट इज d इज इक्वल टू 3 डिग्री। सो ये वाला क्या है, दिस इज द फॉर द ब्रांच कर्व। ओके, ब्रांच लाइन का डिग्री है। ओके, इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये डाइवर्स हो रहा है। ओके, इन द लेआउट ऑफ अ बिजी ट्रैक। ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फॉर्मूला में हमको देखना है कि बिजी ट्रैक है, ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है या हमारा मीटर गेज है। ओके, सो दिस इज ब्रॉड गेज ट्रैक। If the speed on the branch line is restricted to 35 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैक्सिमम कितना स्पीड से जा सकता है ब्रांच लाइन में, दैट इज परमिसिबल स्पीड इज 35 किलोमीटर पर आवर। मतलब ब्रांच लाइन का डिटेल्स दिया गया है। ओके, तो हमको क्या चाहिए, अब मेन लाइन का रेस्ट्रिक्टेड स्पीड निकालना है। सो डिटरमाइन द रेस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑन द मेन लाइन। ओके, नाउ कैन वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांट फॉर द ब्रांच लाइन। इक्विलिब्रियम कांट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए था, इक्विलिब्रियम कांट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए था, दिस फॉर्मूला राइट, ये वाला फॉर्मूला चाहिए था। ओके, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांट फॉर्मूला। ओके, एंड इस वाले फॉर्मूला से हमको क्या चाहिए, G चाहिए। G is what? This is the gauge, inner to inner distance between the two rails. Okay, जो भी है inner to inner distance, that is the gauge. So for broad gauge, what is the value of G? It is 1.676 meter. Okay, V क्या है, V is the restricted speed in the branch line, which is 35 kilometer per hour. Okay, and R is what? R is your radius of the curve. We know what is the formula of radius and degree. We know R is equals to 720 by degree. ठीक है, सो ब्रांच लाइन का कितना था, 5 डिग्री कर्व। तो व्हाट इज द आर वैल्यू, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आर वैल्यू। तो ब्रांच लाइन का क्या था तुम्हारा, 5 डिग्री है, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, एंड योर G is 1.676 मीटर। ओके, so R is how what? R is your 1720 by degree. ठीक है, so डिग्री कितना है, 5 डिग्री है, तो करके देखो 344 मीटर आ रहा है। ओके, now use this formula and calculate the equilibrium कांट निकालो। this equilibrium कांट is what? This is for the restricted speed, मतलब maximum super elevation कितना, ये theoretically ये है, निकालो कितना होगा E का वैल्यू। What is the value of E? C, यहाँ ये वाला इक्वेशन अगर यूज करेंगे विल गेट E इन मीटर। ओके, अगर यहाँ पे 1.27 होता तो हम लोग को सेंटीमीटर में मिल जाता। ओके, तो निकाल कितना आएगा, G is how much, 1.676, V is 35, R is 344. What is the value of E? कितना आएगा, 0.046 আসছে। तो 0.0469 मीटर विच इज 4.69 सेंटीमीटर। ये वाला फॉर्मूला से एक्चुअली मीटर में ही आएगा ई का वैल्यू, सो मीटर में कैलकुलेट किया, इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग 4.69 सेंटीमीटर में। ओके, नाउ डिडक्ट द परमिसिबल कांट डेफिशिएंसी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कांट। मतलब ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम स्पीड के लिए कितना E है ये दिया है। ओके, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांट। नाउ कैलकुलेट द एक्चुअल कांट। एक्चुअल कांट के लिए हमको क्या चाहिए था, हम लोग पता है अप्लाइड प्लस कांट डेफिशिएंसी विल गिव यू द इक्विलिब्रियम कांट। तो हमको अब अप्लाइड कांट चाहिए, तो अप्लाइड कांट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम माइनस कांट डेफिशिएंसी। एंड फॉर ब्रॉड गज इट इज गिवन ब्रॉड गज। ब्रॉड गज के लिए परमिसिबल कांट डेफिशिएंसी हम लोगों ने बोला था इट इज 7.6 सेंटीमीटर, राइट, ब्रॉड गज का।
here 7.6 सेंटीमीटर। सी ब्रॉड गेज का मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी 7.6 सेंटीमीटर। ओके, तो यूज करके व्हाट इज द एक्चुअल, व्हाट विल बी द एक्चुअल कांट, कितना होगा? एक्चुअल कांट विल बी इन द ब्रांच लाइन। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रांच लाइन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। दिस इज इक्विलिब्रियम कांट फॉर ब्रांच लाइन, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रॉड गेज ट्रैक का कांट डेफिशिएंसी 7.6 है। सो एक्चुअल कांट इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम माइनस कांट डेफिशिएंसी। वी नो इक्विलिब्रियम इज अप्लाइड प्लस कांट, राइट? सो अप्लाइड विल बी इक्विलिब्रियम माइनस कांट, सो दैट इज गिविंग अस सी नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इतना टाइम से हम लोग बोले थे ब्रांच लाइन का निकाल रहे। सो ब्रांच लाइन का एक्चुअल कांट, एंड वी नो इन आवर दिस काइंड ऑफ, जब मेन ब्रांच लाइन से मेन लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज होता है तो क्या फॉर्म होता है ब्रांच लाइन में? द सुपर एलिवेशन इन द ब्रांच लाइन विल बी नेगेटिव सुपर एलिवेशन, मतलब कि आउटर एज ऊपर होना चाहिए था इनर एज से ब्रांच लाइन का, लेकिन वैसा नहीं होता है, राइट? तब क्या हो जाता है, आउटर एज विल बी लेसर एलिवेशन, उसका हाइट क्या होता है, एलिवेशन विल बी एट द लोअर लेवल देन द इनर साइड, दैट्स व्हाई नेगेटिव टर्म आ रहा है। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द नेगेटिव सुपर एलिवेशन फॉर द ब्रांच लाइन, मतलब कि बी पॉइंट, योर बी पॉइंट इज टू सी, दिस बी पॉइंट इज, ये ब्रांच लाइन हो गया, ब्रांच लाइन का सुपर एलिवेशन है -2.1 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस इज -2.19 सेंटीमीटर, मतलब B point is at 2.9 centimeter lower level than the A point, ठीक है। तो हम लोग इसको उल्टा करके बोलेंगे तो A point is 2.9 सेंटीमीटर above than the B point, हम लोग लिख सकते हैं। अगर बोला गया है नेगेटिव सुपर एलिवेशन -0.29 आया, मतलब क्या है, B is नीचे की तरफ है, B का लेवल 2.9 सेंटीमीटर से नीचे है A से, ठीक है। तो उसको ऑपोजिट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि A is 2.9 सेंटीमीटर above B, कर सकते हैं ना। एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज द सुपर एलिवेशन और एक्चुअल सुपर एलिवेशन वैल्यू फॉर द मेन लाइन, क्योंकि मेन लाइन का आउटर एज ये है, इनर एज ये है, आउटर एज इज हायर देन द इनर एज, मतलब ये सुपर एलिवेशन फॉर द मेन लाइन। ओके, so branch line का negative super elevation will be super elevation या positive super elevation for the main line, ठीक है। so उस हिसाब से तुम्हारा main line का actual कांट क्या हो जाएगा, main line का actual कांट will be 2.9 सेंटीमीटर। ओके, बट हमको restricted speed चाहिए, तो restricted speed is for permissible maximum permissible कांट। ओके, मैक्सिमम जो है, तो उसके लिए हमको equilibrium कांट चाहिए। So what is the value of equilibrium kant then for the main line? बोलो कितना होगा? If your Kant deficiency is 7.6 centimeter. What should be the value of the equilibrium Kant for the main line? क्या करना चाहिए हमको? दिस इज एक्चुअली ये है, अप्लाइड इज दिस वन, ओके। लेकिन हम लोग को रेस्ट्रिक्टेड स्पीड निकालने बोला गया, तो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड के लिए हमको मैक्सिमम सुपर एलिवेशन और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन चाहिए। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, एक्चुअल सुपर एलिवेशन और कांट डेफिशिएंसी का रिलेशन क्या था? ये था ना, देखो, एक्चुअल प्लस कांट डेफिशिएंसी इज इक्विलिब्रियम। तुमको एक्चुअल निकल आया है, इक्विलिब्रियम चाहिए, पूछ रहा है, तो क्या चाहिए, ऐड करना है हमको कांट डेफिशिएंसी, राइट? तो वी हैव टू ऐड कांट डेफिशिएंसी इन दिस इक्वेशन, राइट? तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल प्लस कांट डेफिशिएंसी, एक्चुअल है 2.9, कांट डेफिशिएंसी फॉर ब्रॉड गेज इज 7.6, सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यू गॉट योर ई वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांट तुमको पता है, ठीक है। अब बोला गया रेस्ट्रिक्टेड स्पीड निकालो, तो परमिसिबल स्पीड ऑन मेन लाइन हमको कैलकुलेट करना है। तो जी कितना है, वी नो फॉर ब्रॉड गेज इट इज 1.2
1.676 मीटर, ब्रॉड गज का है, इनर टू इनर रेल डिस्टेंस इज 1.676 मीटर। डी, मेन लाइन का डी दिया है कितना 3 डिग्री, तो वहां से आर का वैल्यू कैलकुलेट करो 1720 बाई डी, ओके 1720 बाई 3। नाउ यू नो जी, यू नो डी, सॉरी यू नो आर, कैलकुलेट वी। तो फॉर इक्विलिब्रियम कांट वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन यूज करके v का वैल्यू बोलो कितना आएगा। E इज योर, ये वाला इक्वेशन से हमको क्या आया था मीटर में आना चाहिए था, राइट। E का वैल्यू मीटर में आएगा, इसलिए वी आर कन्वर्टिंग दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सब्स्टिट्यूटिंग हियर, ओके। सो 0.105 G इज गिवन, मतलब याद है, हमको याद है 1.676 है, by 127 into R we have calculated. Now calculate V. What will be the V? Whatever V value will come, that will be in kilometer per hour. Because यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा V कैपिटल है, V is kilometer per hour, G will be in meter, R will be in meter, E also will be in meter, okay? तो ये 127 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा V का वैल्यू? What is the value of V? Please calculate. Hello, hello. Ma'am, 67.54. 54, okay. So 6754 अगर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को कितना अगर राउंड फिगर में पूछा गया तो ठीक है, इसको 67.54 नहीं करके राउंड फिगर में देंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग? 68 लिखेंगे। इससे ज्यादा लिखना चाहिए या कम देना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड स्पीड मतलब वी हैव टू रिड्यूस द स्पीड, वी शुड नॉट इंक्रीज। सो मैक्सिमम ही इतना ही हम लोग दे सकते हैं, उससे ज्यादा वी शुड नॉट अलाउ द व्हीकल टू ट्रैवल थ्रू दैट कर्व, राइट। वहां से कर्व से हम लोग इससे ज्यादा स्पीड अलाउ नहीं करेंगे। तो हमको हमेशा याद रखना, आइदर कीप इट दिस मच ओनली और इट इज बेटर टू रिड्यूस। अगर राउंड फिगर करोगे तो हम इसको 67 भी कर सकते हैं, 66 भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 65 किया है, ओके। It should not be increased. Please remember, जहाँ पे भी restricted speed बोला गया है, we have to reduce the speed, not we have to round figure करके increase नहीं कर देना है, okay? और keep it this much only, या अगर तुम इसको round figure करोगे तो घटा के करना है, ना कि बढ़ा के। I think this is clear, ठीक है। अब सेम प्रोसेस में हम लोग उल्टा करेंगे। उल्टा में क्या है, अब देखो, if a 8 degree curve track diverges from the main curve of 5 degree, मतलब this is what, this is again branch line, this is again main line। branch line का D है 8 degree, main line का D है 5 degree, okay, in an opposite direction in the layout of busy yard, broad gauge दे दिया है। calculate the super elevation, okay, and the speed of the branch line, मतलब actual जो provide करेंगे हम लोग branch line में वो super elevation या कांट निकालो, and the restricted speed on the branch line, मतलब उससे ज्यादा हमको नहीं देना, स्पीड restricted यहाँ पे निकालना है। if the maximum speed permitted on the main line is 45, पिछले वाले में क्या था, ब्रांच लाइन का restricted speed दिया गया था और बोला गया था find out restricted speed in the main line। इस वाले में क्या है, restricted speed on the main line is given, now they have asked you to determine restricted speed on the branch line, okay। so can we solve this problem? सेम जो पिछले वाले जो था सेम मेथड से कैन वी सॉल्व। देखो फर्स्ट क्या निकालना है, फर्स्ट व्हाट, सी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड तुमको दिया गया है, ठीक है। अगर ये वाला भी यूज करेंगे तो हमको कौन सा कांट आ जाएगा, किस कांट का वैल्यू आएगा? ऑब्वियसली दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, सो मैक्सिमम स्पीड के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांट ही आ जाएगा, ओके, दैट इज द मैक्सिमम कांट। सो प्लीज कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांट और द मैक्सिमम कांट, ठीक है। तो कितना है, जी वी नो फॉर ब्रॉड गज, ये ब्रॉड गज पूरा है, सो इट इज 1.676, v is given, d is 5 degree, okay, so r will be 1720 by d which is 1720 by 5, okay। तो करके we have to use again
E इक्वल्स टू, ये वाला वैल्यू यूज करना है हमको, you have to use E equals to GV square by 127 R. ठीक है, R is in meter, V is in kilometer per hour, okay, G is given 1.676 meter, okay, R का वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट करके कैलकुलेट द E वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी इन मीटर, E का वैल्यू मीटर में आएगा, निकालो। What about the others? Only Simon is answering. Other people, what they are doing? Please respond. बोलो कितना आएगा E का वैल्यू, G 1.676 पुट करो, V 45 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, R is 1720 by 5. So E whatever value will come that will be in meter. कितना आएगा? .78 आ रहा है? Yes, ma'am, master. So 7.78, यहाँ पे देखो 1.27 है, इसीलिए ये सेंटीमीटर में आया। अगर 127 करोगे तो मीटर में आएगा, उसको फिर कन्वर्ट कर देना है। ओके, 7.78 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम कांट। ओके, नाउ मैक्सिमम कांट फॉर ब्रांच लाइन, ना कि मेन लाइन। ये जो E का वैल्यू है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, किस चीज का, मेन लाइन का है कि ब्रांच लाइन का है? हम लोग ये E किस चीज का निकाल रहे हैं, मेन लाइन या ब्रांच लाइन का? ये स्पीड किसका है, देखो स्पीड कहाँ पे है, स्पीड इज ऑन द मेन लाइन, तो ऑब्वियसली E इज योर मेन लाइन सुपर एलिवेशन। मैक्सिमम मेन लाइन में जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दे सकते हैं वो ये है, बट हम लोग तो मैक्सिमम देकर नहीं करते हैं, राइट? हम लोग तो प्रैक्टिकली थोड़ा कमा देते हैं। सो दैट इज द एक्चुअल कांट। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल कांट देन? इससे हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, सुपर इक्विलिब्रियम कांट से हमको कितना माइनस करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द एक्चुअल कांट? हाँ, E एक्चुअल निकालने के लिए हमको क्या करना है, E एक्चुअल निकालने के लिए E मैक्सिमम जो है इक्विलिब्रियम जो है माइनस कांट डेफिशिएंसी करना है, राइट? मैक्सिमम स्पीड के लिए इक्विलिब्रियम तुम्हारा जो भी है कांट है ये, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा कमा देते, तो कितना कमा देते हैं, CD माइनस कर देते हैं। CD इज व्हाट, कांट डेफिशिएंसी। एंड फॉर ब्रॉड गज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD? ब्रॉड गज के लिए CD का वैल्यू कितना है, कितना सेंटीमीटर? 7.6। मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी वैल्यू फॉर CD इन ब्रॉड गेज इज 7.6 सेंटीमीटर। तो ये मैक्सिमम हमको आया, दिस इज योर मैक्सिमम 7.78। CD ये है, तो EA कितना आएगा, निकालो। EA विल बी 0.18, right? 7.78 minus 7.6 is giving you 0.18 centimeter. Now this is what, this is the actual super elevation that is to be provided in the main line. इसका मतलब क्या है तुम्हारा, इसका मतलब है कि ये जो मेन लाइन है, ये मेन लाइन में आउटर कौन सा है, A है। फॉर दिस मेन लाइन आउटर इज A, इनर इज B, सो A इज 1.8 सेंटीमीटर अबव देन द B पॉइंट, राइट? फॉर मेन लाइन से हम लोग को ये आ रहा है, बट ब्रांच लाइन के लिए क्या हो जा रहा है, सुपर एलिवेशन A इज 1.8 अबव B हो जा रहा है, अबव 1.8 सेंटीमीटर अबव B, राइट? हमको इसको दूसरा वे में भी लिख सकते हैं, B इज 1.8 सेंटीमीटर बिलो A, ये भी लिख सकते हैं, राइट? फॉर ब्रांच लाइन हम लोग क्या देख रहे हैं
B is 1.8 centimeter below than the A. That means ये वाला negative super elevation आ रहा है. So what is the negative super elevation of the branch line? Minus 1.8 centimeter. Okay, so the actual super elevation for the branch line is minus 1.18 सेंटीमीटर. ओके, सो तो ये जो तुम्हारा एक्चुअल, इसमें एक्चुअल जो हो रहा है, so negative cant provided for the branch line will be minus 0.18. ओके, ये जो है तुम्हारा मेन लाइन का अगर इतना है पॉजिटिव, मतलब B इज 1.8 सेंटीमीटर, सॉरी A इज 1.8 सेंटीमीटर अबव B, तो ब्रांच लाइन के लिए हम लोग लिख सकते हैं B इज 0.18 सेंटीमीटर बिलो A. इसलिए ये क्या है, नेगेटिव आ जा रहा है. ओके, मतलब ब्रांच लाइन में वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली तुम्हारा सॉरी मेन लाइन में वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ब्रांच लाइन में वो नेगेटिव हो जाएगा. ये याद रखना है. ओके, और नेगेटिव जो ब्रांच लाइन का जो नेगेटिव होगा वो तुम्हारा मेन लाइन में जाके पॉजिटिव हो जाएगा. पिछले बार जो हम लोगों ने किया है. सो वी हैव टू टेक दिस वैल्यू फॉर फर्दर कैलकुलेशन. हमको ये वाला वैल्यू लेकर करना है. ओके, सो द कांट प्रोवाइडेड फॉर द ब्रांच ट्रैक इज माइनस 1.8 सेंटीमीटर. ओके, माइनस 0.18 सेंटीमीटर. नाउ कैलकुलेट व्हाट इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन. इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करो. वी नो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वही है. फॉर्मूला क्या था, E actual is your what, E maximum माइनस CD है, राइट. E actual is माइनस CD. अब ये है तुम्हारा E actual, मतलब ये है तुम्हारा E actual, मतलब ब्रांच मेन लाइन का एक्चुअल कितना था, 0.18 सेंटीमीटर. तो ब्रांच लाइन का क्या हो जाएगा, माइनस 0.18 सेंटीमीटर विल बी E actual फॉर द ब्रांच लाइन. ठीक है. एंड CD वी नो इट इज अगेन 7.6, ब्रॉड गॉजी है तो ये CD का वैल्यू 7.6 है. सो कैलकुलेट E मैक्सिमम फॉर द ब्रांच लाइन. ये E एक्चुअल है तुम्हारा फॉर द ब्रांच लाइन माइनस 0.18 सेंटीमीटर. ठीक है. CD है तुम्हारा कांट एफिशिएंसी इज 7.6. सो कैलकुलेट E मैक्सिमम, मतलब इक्विलिब्रियम कांट कितना होगा, कैलकुलेट करो. फाइव पॉइंट एट. 5.8. वो अच्छा, मैं तो वो अच्छा 0.18. हाँ 0.182. ओके, 7.42. ओके. सो 7.42, देखो 7.42 इज द मैक्सिमम. So 7.42 is the equilibrium cant, that is the maximum cant. So corresponding maximum cant के लिए corresponding maximum speed निकालो. Same वही formula जो है, E equals to gv square by 127 r, right? So E equals to तुम्हारा क्या हो जाएगा, E equals to क्या है, gv square by 127 r. Okay, so we know r का वैल्यू कितना था, 5 डिग्री था, राइट, सॉरी 3 डिग्री था शायद. G का वैल्यू है तुम्हारा 1.676. ठीक है. V का दिया गया है तुम्हारा, V कैलकुलेट करना है. E we got, E is 7.42. ओके, सो देखो E का वैल्यू है 7.42, G का वैल्यू है 1.676. इसमें हम सब्स्टिट्यूट किए. ओके, V वी डोंट नो, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. हम लोग तो ब्रांच लाइन का ही तो निकाले. दिस इज द ब्रांच लाइन, राइट. ब्रांच लाइन मैक्सिमम सुपर एलिवेशन एंड यहाँ पे 1.27 है, तो जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी तुम्हारा ये वाला सेंटीमीटर में पुट अगर करोगे तो यहाँ पे 1.27 होगा. ओके, इफ वी पुट दिस इन मीटर देन हियर 127 होगा. मतलब E का वैल्यू मीटर में करोगे तो 127, E का वैल्यू सेंटीमीटर में पुट करोगे तो इट विल बी 1.27. इसलिए देखो सेंटीमीटर में पुट गया है. एंड R इज व्हाट, 8 डिग्री. डिग्री इज 8, सो R इज 1720 by 8. ऊपर चला गया 8. देखो V का वैल्यू आ रहा है अगेन
34.7 किलोमीटर, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली वी शुड ऑलवेज कीप इट लोअर, नॉट द above than this value, more than this value. Okay, so भी कर सकते हो 32, 33 कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे 34 कर दिया है. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब तुमको ब्रांच लाइन का दिएगा, बोलेगा मेन लाइन निकालो, मेन लाइन का निकालो, बोलेगा ब्रांच लाइन का निकालो. कुछ नहीं है, जब भी ब्रांच लाइन का एक्चुअल काउंट जब भी निकालोगे तो नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है. और मेन लाइन से जब तुम लोग ब्रांच लाइन में जाओगे तो तब भी उसको हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले लेना है. ओके, माइनस पुट कर देना है खुद से, क्योंकि ब्रांच लाइन में एक्चुअल कांट विल बी नेगेटिव प्लांट, नेगेटिव सुपर एलिवेशन, इसलिए ये माइनस टर्म आ जा रहा है. ओके, क्लियर? क्लियर है ना इतना दूर तक? So in this lecture we will our geometric design is over. Okay, geometric design of railway track is over. So in the next lecture we will learn other topics that will be important for your short notes, like coning of wheel, what do you understand by tilting of rail. Okay, so that will be less, there will be mainly 3 topics will be learned in our next lecture. Okay, then this much for this lecture. We will join after 11:55. Okay, ठीक है, 11:55 में हम लोग ज्वाइन करेंगे again for the next lecture.